The College of Physicians and Surgeons of Pakistan, established by an Act of Parliament in 1962, is the main postgraduate body of the country. The founder of this prestigious institute, Lieutenant General Wajid Ali Khan Burki, past President Professor Muhammad Sultan Farooqi, Professor Zafrullah Chaudhary and their councils, contributed a lot, and the current council is continuing with the same spirit. In the current week, college had series of activities mainly in Quetta and Karachi headquarters. 3 days ATLS course was conducted from 12th to 14th May 2022, and Quetta Regional Center has been declared as permanent center for advanced skills courses. After 1992, the current council had 55th convocation at Quetta Center, wherein 165 fellows and 22 members were awarded degrees by the President, CPSP, Professor Muhammad Shoaib Shafi, and the chief guest, Professor Shahnaz Nasir Baloch, who also congratulated the fellows and their families on this happy occasion. The series of activities at Quetta Center concluded with accreditation and re-accreditation, visit of the institutions and supervisors, and fellows mood. These fellows appreciated the presence of council members for these academic activities. This was followed by the continuity of activities at Karachi headquarters, meeting of various committees, council meetings, and important policy decisions were made for quality medical education. The most important annual general body meeting of the fellows was held on 14th of May 2022 at 5 p.m. conducted by Professor Irshad Waheed, Secretary of the College. Besides physical presence of fellows at Karachi headquarters, all centers were connected online. After Tilawat and National Anthem, the Senior Vice President, Professor Khalid M Gondal, welcomed the participants and presented the updates of college as On behalf of the College Council, I welcome all the honorable fellows. I could see so many fellows sitting in this hall, the deans, the member of various faculty, the representation of Pakistan Army, and शौकत साहब की मौजूदगी जर्नलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इस वेलकम के साथ next 10 minutes I'm just going to update the current status of CPSP, and then the president is going to present the budget. This is your institution, and by the grace of Allah Almighty, with the help of our honorable councillor from Karachi, Khalid Ashrafi Sahab, Shahid Parvez Sahab, Masroor Sahab, Amri Nafsal, Shaila Bakai, Abbas Sahab, we are maintaining this green lines, the flowers, or the founder of the college, Lieutenant General Wajid Ali Burki. I think this is his Sadaqah Jariyah. Then Professor Sultan Farooqi contributed a lot for this college. Followed by Professor Zafrullah Chaudhary, और हेल्थ इशू की वजह से ज़फला साहब इस वक्त यूएस में, and currently the college is led by a young president Professor Shoaib Shafi. जब भी मैं वाजिद अली बरकी साहब को देखता हूँ तो मुझे वो शेर याद आ जाता है कि मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया. ये वो शख्सियत है जिन्होंने 1962 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश किया विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये वो कारवां के पहले 50 साथी. आई थिंक वी मस्ट गिव क्रेडिट टू दीस 50 पीपल जिनकी ये विजन थी, जिनका ये विजन था, और आज इस वक्त कॉलेज एक सक्सेस स्टोरी है इन द कंट्री एंड अब्रॉड. Currently, this is the office bearer, Professor Shoaib Shafi, another member of the council. Charter, we all know, promotion of specialist practice, medicine, surgery, gynae, and other specialty, and similarly arrangement of the training in medical surgery and other specialties, conduction of examination and research. This is the current strength of your college. Currently, the college is contributed to the country over 42,000 specialists. 31,000 they are the fellow, 11,000 plus they are the member. And by the grace of Allah Almighty, we are having the maximum number of the postgraduate program, that is 78. 45 are the first fellowship, the rest are the second fellowship program. And the maximum number in the world, that is 76 by Royal College of Physicians in Canada, and we are having the 78. The number of the training in the various stages of the structured training program, they are over 30,000, in which you can see the distribution
in the armed forces, public and private. And currently the supervisor, they are 4,600 and all they are the accredited supervisor. The hospital 273, whereas 76 they are the overseas. We are having 12 regional center and 4 sub-center in various part of the world. This council came, I think, took over in 2007. और उस वक्त जो पहला सेंटर इस्टेब्लिश किया गया, that was in कोटा. इसके बाद हैदराबाद के मेरे दोस्त बैठे हुए, जुनेदो साहब अपनी टीम के साथ आए हुए. सेकंड वाज द हैदराबाद सेंटर, फिर एबटाबाद, फिर भागलपुर, और फिर तमाम सेंटर को एक्सपेंड किया गया. ये ऑडिटोरियम रेनोवेट हुआ, मेडिकल एजुकेशन की बिल्डिंग बनी, प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट बना, यहाँ कैंटीन अशवी साहब ने खुद सुपरवाइज करके रेनोवेट की, गेस्ट हाउस को रेनोवेट किया. और ये तमाम सेंटर लाइक पेशावर, मुल्तान, लाहौर, इनकी एक्सटेंशन मोर देन डबल हुई विदाउट इंक्रीजिंग अ सिंगल पेनी फीस इन द एग्जामिनेशन ऑफ द वर्कशॉप. और फिर इन सेंटर के साथ अभी प्रोफेसर शोएब शफी जब प्रेसिडेंट बने हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा रिमोट सूबा था, वहां नया सेंटर स्टैब्लिश किया गया और इंशाअल्लाह 3 करोड़ की लागत से वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट सेंटर इन दिस ईयर. And all these centers, they have been connected with the video conference, and we are using this video conference facility for various meetings of the faculty and other meetings. और आज भी we have got the best IT department, Manzoor Saab, Shahzad Saab यहाँ उस वक्त मौजूद है, and all the center they are connected. I have been told 460 people they have been registered to be for their participation on online through Zoom. This is again an innovation of the college, जो आप लोगों की टीम स्पिरिट की वजह से, फैकल्टीज और फैकल्टी मेंबर्स उनकी वजह से. जब हम इम्तिहान में अपीयर हो रहे थे, राव साहब, ब्रिगेड साहब यहाँ मौजूद है, महमूद मौजूद, ये सारे दोस्त जब मौजूद, जब हम इम्तिहान दे रहे थे तो थ्योरी पेपर बालिश्तों में नापा जा सकता था. तमीर साहब उसी दौर के, तमीर खालिद साहब इस्लामाबाद से स्पेशली तशरीफ लाए हुए हैं. और उस वक्त के बाद फिर इवैल्यूएशन में चेंजेस आई. तो मुत्तकी साहब की स्टेज आई, तो उसके बाद फिर एसएक्यूज, एमसीक्यूज का कंसेप्ट आया. इसके बाद हमने देखा कि 14 सेंटर नेपाल, सऊदी अरब में एक वक्त इम्तिहान देना मुश्किल है, सिक्योरिटी रीजंस. सो द एग्जामिनेशन वाज शिफ्टेड टू ऑनलाइन. एक रात में पैरेलल दोनों एग्जामिनेशन शिफ्ट, पैरेलल दोनों सिस्टम चले. 14 सेंटर पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन अब हो रहा है, पार्ट 1 का, इंटरमीडिएट मॉड्यूल का, और इन सम स्पेशलिटी ऑफ द पार्ट 2. दिस इज द मॉनिटरिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉम हेडक्वार्टर, जिसमें तमाम सेंटर इस वक्त आप देख सकते हैं. कोविड में एक्टिविटी स्लो रही, और आई थिंक आप सबको पता है कोविड ने जिस अंदाज में मुतासर किया पूरी दुनिया को. पाकिस्तान माशाल्लाह ये वेल डिफाइंड लाइन वर्कर ने बहुत काम इसके लिए किया. जो कोविड डिक्रीज हुआ, कॉलेज की एक्टिविटी उसी अंदाज में. सो 21 का फर्स्ट कॉन्वोकेशन इस्लामाबाद में हुआ, जिसको चेयर किया आर्मी चीफ ने. और उसके बाद वी हैड अ मीटिंग इन द GHQ, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द पाकिस्तान आर्मी बिकॉज दे आर द फाउंडर ऑफ द कॉलेज, दे आर द कस्टोडियन, 3 सिटिंग जनरल, दे आर ऑन द काउंसिल ऑफ CPSP. और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी जब आर्मी चीफ ने कहा, यू आर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड एंड द मेरिट. और अगर कोई भी आपको कोई टेलीफोन कॉल इसके बारे में आए, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, जस्ट टेल अस एंड वी विल मेक श्योर कि इसमें इंटरफेरेंस किसी किस्म की ना हो. इसके बाद लाहौर की कॉन्वोकेशन मार्च 22, गवर्नर ही वाज द चीफ गेस्ट. सिमिलरली देन कराची की कॉन्वोकेशन, इसमें आप लोग तशरीफ लाए और ये कंटिन्यूटी उसी तरह रही. और आज से 1-2 दिन पहले की बात है, कोयटा में जब मैं और तमीर खालिद हमने इकट्ठी फेलोशिप की, शोएब साहब भी उस वक्त मौजूद थे. 1992 में कोयटा में कॉन्वोकेशन हुई. उसके बाद कोयटा में कॉन्वोकेशन नहीं हो सकी, तो 2 दिन पहले दिस इज द कॉन्वोकेशन इन कोयटा. कॉन्वोकेशन हुई, एडवांस स्किल कोर्सेज हुए, और वहीं पे हमने फेलोज मीट की. दिस इज द फेलोज मीट इन कोयटा 2 दिन पहले किए. ATLS कोर्सेज जहां हमारे इदार अशरफ अली और कोर्सेज के डायरेक्टर्स मौजूद है. एंड टुडे द काउंसिल हैज डिसाइडेड, जिसपे प्रेसिडेंट साहब बात करेंगे, कि तमाम सेंटर्स पे we are going to have the equipment of advanced skill courses, and we are going to have the advanced skill courses at all the provincial center and then all the regional centers. हमारे ऑलरेडी सेंटर नेपाल में लैंडलॉक कंट्री बाय हिंदू इंडिया, उससे लैंडलॉक कंट्री है, बट आई थिंक वी आर हैविंग द रेगुलर FCPS एग्जामिनेशन. द हाईएस्ट डिग्री ऑफ नेपाल इज द फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान. सिमिलरली रियाद सऊदी अरेबिया में, और वी हमारी है the college should be the leader in the medical education for Muslim Ummah,
and this qualification should be one of the best qualification of the world. इंटरनेशनली मैंने बताया कि हमारे सेंटर नेपाल और सऊदी अरब में, लेकिन कैरियर काउंसिल ने डेवलप वर्ल्ड वहां सेंटर इस्टेब्लिश किया इन डबलिन, इन बर्मिंघम। इस वक्त अगर आप जाएंगे तो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन फिजिशियन आयरलैंड में पेट लगी होगी सब सेंटर कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान। सिमिलरली यूनिवर्सिटी बर्मिंघम हॉस्पिटल में वी हैव गॉट द सब सेंटर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान। और कॉलेज बिलीव इन सेल्फ रिलायंस, खुददारी, and then the reciprocity and collaboration is on the basis of the mutual relationship of equality, accreditation, overseas scholarship plan अभी जिनका तज़किरा करूंगा, and then the exchange of the examiner. तो बेसिकली जिस मुल्क में भी कॉलेज डेलीगेट जाता है, we see the ambassador and the ministers, you can see the Saudi Arabia, Qatar, Canada, America, Ireland. This is Nepal. नेपाल में 2007 में 15 लोग अपीयर हुए। अब माशाल्लाह इन हंड्रेड्स में पार्ट 1 एग्जाम दे रहे हैं, पहले पेपर बेस्ड, अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। और सऊदी अरब में MOU साइन 2007-8 में हुआ, प्रोफेसर सुल्तान फारूकी ने भी इनके लिए बहुत काम किया। अभी इस वक्त सऊदी अरब में हमारे सेंटर में थ्योरी एग्जामिनेशन के अलावा इंटरमीडिएट मॉड्यूल का एग्जामिनेशन हो रहा है। दिस इज द मीटिंग विद द सऊदी हेल्थ काउंसिल फॉर स्पेशलिस्ट इन डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान। और आगे मैं जिन 2 स्कीमों के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो बहुत कामयाबी के साथ चल रही हैं, एंड दे आर एग्जांपल फ्रॉम द वर्ल्ड। एक स्कीम है कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इन पाकिस्तान एंड हेल्थ सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ऑफ आयरलैंड। 2008 में पहली विजिट हुई और 2013 में पहला बैच हमारा आयरलैंड गया और इस वक्त 462 बच्चे इस स्कीम को अवेल कर चुके हैं। इसमें ये पार्ट 1 किया, 2 साल की ट्रेनिंग की, इंटरमीडिएट मॉड्यूल क्लियर किया, इंग्लिश में 7+ मार्क्स हुए। एंड देन जितनी जरूरत उन पोस्ट ग्रेजुएट की उन्हें होती है, दे टेल अस के इतने होने चाहिए। वी अनाउंस दैट ऑन आवर वेबसाइट। सीरीज बच्चों के हम कलेक्ट करते हैं एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द काउंसिल और एनीबॉडी फ्रॉम द कॉलेज। टोटल ट्रांसपेरेंसी ऑन मेरिट। वो सीवी खुद देख के कहते हैं 1 सीट के अगेंस्ट 3 बच्चे, और वीडियो कनेक्टिविटी के जरिए इंटरव्यू होता है। इंग्लैंड में इंटरमीडिएट मॉड्यूल के बाद 8 डिसिप्लिन से स्टार्ट किया, आयरलैंड में 8 डिसिप्लिन से स्टार्ट किया और 11 डिसिप्लिन में बच्चे जा रहे हैं। इंग्लैंड में एक जूनियर फेलोशिप स्कीम है इंटरमीडिएट के बाद, और सेकंड इज द सीनियर फेलोशिप स्कीम जो FCPS के बाद है, और ये तमाम डिसिप्लिन में। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। IELTS में मार्क्स एवरेज 7 हो, इसी तरह OET के B ग्रेड हो, दैट इज द रिक्वायरमेंट, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज है। 462 ट्रेनिंग। दिस इज द डिटेल्स ऑफ दो स्पेशलिटी। 2013 से लेकर 30 से लेकर तकरीबन 80 के करीब बच्चे हमारे ईयरली जा रहे हैं। और मैं शौकत साहब ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था कि इन बच्चों को वो वही इन्वॉल्वमेंट देते हैं जो अपने बच्चों को देते हैं, लाइक 5 से 7 लाख रुपया। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान को इससे क्या मिला, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में इन बच्चों ने भेजी दैट वाज ओवर 10 बिलियन, 10 अरब के करीब इस स्कीम के जरिए पाकिस्तान को इन रिटर्न पैसा मिला। ये वो तरीकाकार है जिससे ये इंटरव्यू लेते हैं। रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव दे आर देयर, और हमारे बच्चे सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। और 2013-14 के इंटरव्यू के बाद मैंने रॉयल कॉलेज के प्रेसिडेंट से पूछा कि आप हमारे बच्चों के बारे में व्हाट डू यू फील, व्हाट आर योर फीलिंग, कि ये आप लोगों के पास किस अंदाज में काम कर रहे हैं। माइकल अर्ली उनके प्रोग्राम डायरेक्टर हैं and they are the representative of Royal Colleges of College of Ireland. इसमें I think feedback में they were happy and satisfied. और फिर ये last batch जब आयरलैंड में गया, the respect they are giving to your postgraduate resident, और मैं ये समझता हूँ ये रिस्पेक्ट आप लोगों की वजह से, जिस अंदाज में आप ट्रेन कर रहे हैं, वो लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट, कि 33 डॉक्टर आए पाकिस्तान से, हम उनको वेलकम करते हैं। और नीचे आयरिश में लिखा हुआ है कि 1 लाख मरतबा इन ट्रेनी को वेलकम करते हैं। और जिस अंदाज में आज हमारी मीटिंग हो रही है, हमारी स्टेजिंग कमेटी है, वहां रेगुलर हमारी ट्वाइस ईयर मीटिंग होती है। एंड देन वी एक्रीडेट देयर हॉस्पिटल, वी एक्रीडेट देयर सुपरवाइजर। और ई-लॉग सिस्टम जो पाकिस्तान का, वही यूके और आयरलैंड में वी आर यूजिंग एज द मॉनिटरिंग टूल फॉर दीज रेजिडेंट। और दिस इज द प्रेजेंटेशन व्हिच आई एम गिविंग ऑन द ई-लॉग सिस्टम।
और इस प्रेजेंटेशन के बाद जो ATLS गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज चीफ लिखती है, Dear Professor Gondal, I wish to let you know about your response of the demonstration of CPSP e-log system. My colleague here in NDTP, along with our training body colleague, were hugely impressed. They all are saying we should introduce something similar. अब गोरे लोग बात कर रहे हैं कि अच्छी चीज है, हमें भी इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और साथ कहते हैं that to be used for all the training body. At present, all training body are using a different system, so they cannot talk to one another. They all asked me to pass on their congratulations to you in the college. तो ये मुबारकबाद काउंसिल को नहीं है, ये आप सबको मुबारकबाद है जिस अंदाज में आप इन ट्रेनिंग को ट्रेन कर रहे हैं. Then they invited us in their parliament, उनके हेल्थ मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हुई. ये करंट 2022 के इंटरव्यू का स्टैटिस्टिक्स है. 130 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया इन दीज वेरियस स्पेशलिटी. ये वो डेट से जो इंटरव्यू हुए वीडियो कनेक्टिविटी के साथ, उसी तरह इंटरव्यू चल रहे हैं. खालिद अशरफी साहब कराची से कनेक्टेड हैं और बाकी तमाम हमारे काउंसिल कनेक्टेड हैं. दिस इज द इंटरव्यू जो कि फरवरी में हुए. फिर यूके के प्रेसिडेंट ने इन्वाइट किया और यूके में जूनियर और सीनियर फेलोशिप ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए. इयन गिलमोर के साथ जो रॉयल कॉलेज ऑफिशियल लंदन के प्रेसिडेंट है, उनसे MOU साइन हुआ. और ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके जो बच्चे इंटरमीडिएट कर चुके हैं, इंग्लिश बोलना आता है, तो वो किसी इन तमाम स्पेशलिटी में दे कैन अप्लाई फॉर द प्लेसमेंट इन द यूके. इसके बाद हमें वो हमारे फेलोज जिन्होंने कहा कि FCPS वालों के लिए क्या किया, तो सीनियर फेलोशिप प्रोग्राम हम लेके आए और इसमें इस स्कीम को नाम दिया गया ब्रेन गेन, नॉट द ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन नहीं, क्योंकि 2 साल काम करने के बाद दे विल हैव टू कम बैक कंपल्सरी टू पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को सर्व करना. ये वो इदारे हैं जहां हमारे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट जा रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बर्मिंघम है, वॉलसेल है, रीड टीचिंग हॉस्पिटल है, हल एंड योर्कशायर है, डडले है, और 386 रेजिडेंट इस वक्त वहां पे काम कर रहे हैं. ये रॉयल कॉलेज के प्रेसिडेंट है जो इसका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं. दीज आर द वेरियस स्पेशलिटी जो 2022 में इंटरव्यू हुए और बच्चे हमारे गए. एंड दिस इज हाउ द इंटरव्यू इज गोइंग ऑन इन वेरियस स्पेशलिटीज. कैनी साहब हमारे वहां के रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज कोऑर्डिनेटिंग दिस इंटरव्यू. और फिर हमारी जो ये स्कीम है आयरलैंड वाली और यूके वाली, इस पे CNN अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री इशू की कि आयरलैंड को प्रॉब्लम हुआ इन द ह्यूमन रिसोर्स. दे कॉन्टेक्टेड पाकिस्तान एंड वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान MOU वाज साइन. और फिर हमारे बच्चे गए. ये इंटरमीडिएट मॉड्यूल के बाद दे रिलेटिवली ट्रेन बच्चे वहां जाके अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते हैं. टेक्नोलॉजी अच्छी है, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है और एथिकल प्रैक्टिसेस प्रोफेशनलिज्म सीख के आते हैं. विन विन सिचुएशन. दे हैव द गुड डॉक्टर्स और हमारे डॉक्टर्स को गुड एनवायरनमेंट. And this is the feedback of one of the training के इस स्कीम से उन्होंने क्या सीखा. Dr. Mohammed Al-Wais is working at the Coombe Women and Infants Hospital in Dublin, Ireland. He's come from Pakistan as part of an innovative scheme to give foreign doctors specialist training. When his 2-year stint here is over, he will return to Pakistan. And try to implement good things, positive attitudes over there in Pakistan. पॉजिटिव थिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड. मैंने एक बच्ची से पूछा कि व्हाट इज योर फीडबैक. इसने कहा जी मैंने एक हफ्ते में जितनी मरतबा सॉरी और थैंक यू कहा आयरलैंड में, मैंने 1 साल में पाकिस्तान में इतनी मरतबा नहीं कहा. तो ये एक सीखना होता है. एंड देन देयर इज थर्ड पार्टी एनालिसिस. कोविड के दौरान एक्सटर्नल एग्जामिनर हम रॉयल कॉलेज के इनवाइट नहीं कर सके. अब दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ. सर्जरी में माइकल हालैंड ने पार्टिसिपेट किया जो रॉयल कॉलेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट थे. इम्तिहान के बाद मैंने उनसे पूछा व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द रेजिडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इन पाकिस्तान. ऑल्दो वेरिएशन ऑफ ट्रेनिंग है, इवैल्यूएशन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है. शौकत साहब कभी कभी लिखते रहते हैं ये करें ये करें ये करें. एंड वी ऑलवेज वेलकम द हेल्दी क्रिटिसिज्म. लेकिन ये बुरा क्या कह रहा है आपके सिस्टम के बारे में. आई एम जस्ट शेयरिंग द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. If we're going to have international class care for our patients in our hospitals, then we've got to expect international class academic qualifications. And I've just spent some time here being an external examiner, and I was very impressed by the rigour of the examination, the high standard of training of all of the people who sat the examination, and particularly the professionalism and the transparency around the process, which was world class, and the quality of the
material presented for the trainees. And I think people in Pakistan can feel very comfortable that their surgeons and no doubt their physicians are very, very well trained by this college. And from my experience as an examiner in my own college, the standard is absolutely world class. So he was happy and satisfied. Department of Medical Education, जितनी activities हमारी हो रही हैं, I'm not going into the details of those workshops. It's got ATLS, ACLS, PALS और also 2007 में पाकिस्तान में स्टार्ट हुई, 2009 में इंडिया में, 2014 में चाइना में. Pakistan became the leader of these advanced skill courses, and College of Physicians in Pakistan is the institution जिसने सबसे पहले स्टार्ट की. All these activities were accredited by ACCME. इसी तरीके से फिर वेरियस प्राइज मिले और स्कीम को जैसे मैंने कहा ब्रेन गेन नॉट द ब्रेन ड्रेन का नाम दिया गया. वेरियस प्राइज जो कॉलेज को मिले और ये हाईएस्ट प्राइज है हेल्थ सर्विसेज ऑफ आयरलैंड का जो जॉइंट मिला आयरलैंड की हेल्थ सर्विस एग्जीक्यूटिव को और कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इन पाकिस्तान को. Now coming to the future vision of the college to be recognized as the international training and advisory center in the world, CPSP has justified its claim to be the pioneer and custodian of postgraduate medical education both within the country and abroad. और मैंने शुरू में आपको तस्वीर दिखाई थी कि जिसमें कॉलेज में ग्रीन लॉन और फूल थे और रात कॉलेज की आप तस्वीर देखेंगे तो ये चमकती हुई बिल्डिंग नजर आएगी और मैं ये समझता हूं कि इस चमकती हुई बिल्डिंग के स्टार्स और दिन में खिले हुए फूल ये सारे इस हाल में बैठे हैं. आपका बहुत शुक्रिया. और यहां शुरू में मैंने एक शेर पढ़ा था कि मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल और आखिर में मैं ये शेर पढ़ रहा हूं शिकवा जुल्म के शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाए जाते. हम बहुत मशकूर हैं इन तमाम फेलोज के, फैकल्टी मेंबर्स के, डीन्स के. आप जिस अंदाज में कॉलेज को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज द रीजन CPSP is the success story in the country and this is the success story of the world. Thank you and thank you for coming today. Later on, Treasurer Professor Muhammad Masroor presented the budget and got approved by the general body. President Professor Muhammad Shoaib Shafi highlighted the current and future vision of the college and responded to the questions of the fellows. The general body meeting concluded with a vote of thanks by Vice President of the college, Professor Khalid M Ashrafi. The collective vision and wisdom of the council is to make the institution as leader of medical education in the world, especially for Muslim Ummah and its qualification internationally per excellence.